Good morning, students. In today's lecture, I will be discussing with you a very useful or beneficial insect called honeybee. The zoological name of honeybee is Apis cerana indica, commonly known as the Indian honeybee. Apis cerana indica was originally or initially called Apis indica, but with so many different species around and so many subspecies around, Apis indica was called the Apis cerana indica. There are two other strains available found in hilly region in India as well as found in the lowland region of Indian terrain. So, the strain which is found in the hilly region is called Apis cerana piscia, and the one found in the lowland region is called Apis cerana pironi. Apis cerana indica is the Indian species. The other species that produces honey are Apis dorsata. Apis dorsata is also known as the giant bee or the rock bee. It is a very aggressive bee and is hence not used for apiculture. The other honeybees are Apis florea. It is known as the red dwarf bee or the little bee as it is small in size. It is very docile. The honey produced by Apis florea is very sweet. Another strain is called the Apis mellifera. It is also known as the European bee. It also produces good quantity of honey and is also very docile. Details about all these honeybees will be discussed in a few while. The classification of honeybee, we all know that it belongs to phylum Arthropoda, class Insecta, order Hymenoptera, genus Apis, and several species that I have mentioned: Apis dorsata, Apis florea, Apis cerana indica, Apis mellifera. About 20,000 bees are known to inhabit the planet, of which 7 to 11 species are known to produce honey, of which we have discussed about the four type which produces honey: Apis dorsata, Apis florea, Apis cerana indica, and Apis mellifera. Characteristic of order Hymenoptera is that they have two pair of equal sized membranous wings. The mouth parts are of chewing and lapping type.
The important characteristic of Hymenoptera is the presence of sting apparatus in place of ovipositor in workers. आज हम एक बहुत ही उपयोगी इंसेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, एपिस केराना इंडिका या हनी बी। एपिस केराना इंडिका को सामान्यतः इंडियन हनी बी भी कहा जाता है। एपिस केराना इंडिका पुराने नॉमेनक्लेचर के अनुसार एपिस इंडिका के नाम से कहा जाता था, परंतु बहुत सारी विभिन्न सब स्पीशीज़ होने की वजह से एपिस इंडिका को नया नाम दिया गया, एपिस केराना इंडिका। इसकी दो और स्ट्रेन्स होती है, एक जो पहाड़ी इलाके में रहती है जिसको एपिस केराना पीसिया कहा जाता है, और दूसरी स्ट्रेन लो लैंड यानी तराई इलाके में पाई जाती है और उन्हें एपिस केराना पिरोनी कहा जाता है। इनकी दूसरी जो स्पीशीज़ है वो है एपिस डॉर्सेटा, जिसे कि जायंट बी या रॉक बी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्पीशीज़ बहुत ही आक्रामक होती है, इसीलिए इन्हें एपीकल्चर में इस्तेमाल नहीं किया जाता। एपिस फ्लोरिया को रेड ड्वार्फ बी या लिटिल बी के नाम से जाना जाता है। यह आकार में छोटी होती है और इसके द्वारा बनाया गया मधु बहुत ही मीठा होता है। एपिस मेलिफेरा को यूरोपियन बी कहा जाता है। यह विदेश से आई प्रजाति है जिसके द्वारा बहुत ही उत्तम क्वालिटी का हनी बनाया जाता है और यह बहुत ही सौम्य या जेंटल हनी भी होती है। एपिस की क्लासिफिकेशन हम जानते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसका फाइलम क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनॉप्टेरा। हाइमेनॉप्टेरा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस प्रकार से हैं, इसमें दो जोड़ी समान आकार के झिल्ली समान पंख होते हैं। मुखांग जो है वह चूषक और चवर्णक प्रकार का होता है। मादों में अंड निक्षेपक स्टिंग अपैरेटस यानी कि छेदक दंश बनाता है। यदि हम इनके हैबिटेट की बात करें तो कुछ मधुमक्खी स्वभाव से बहुत ही सौम्य होती हैं, केवल उन पर आक्रमण होने पर ही वह जवाबी हमला करती है और इसके लिए अपने जो स्टिंग अपैरेटस है उसमें व्याप्त स्टिंगर से अपने शत्रुओं की त्वचा को भेदती है और पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन और फेरोमोन्स को स्रावित करती है। इस फेरोमोन से दूसरी साथी वर्कर बीज को यह सिग्नल मिलता है कि उनके छत्ते पर या उन्हें खतरा है और वह बड़ी तादाद में हमलावर पर हमला करती है। जो विष हमला करने वाले पर छोड़ा जाता है उसके कारण भी किन्हीं व्यक्तियों में बहुत ही सीरियस प्रकार का एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और कुछ मधुमक्खियाँ स्वभाव से बहुत ही जेंटल हैं और वैसे ही कुछ मधुमक्खियाँ बहुत ही आक्रामक होती हैं। यह चित्र इनके आवास स्थल के बारे में बताता है। यह पेड़ों पर, ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंची इमारतों पर अपने वर्टिकली हैंगिंग हाइव का निर्माण करती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर छत्ते का निर्माण करते हैं। मधुमक्खी का छत्ता वर्कर बीज के द्वारा बनाया जाता है और छत्ता दोहरी स्तर की षटकोणीय
प्रकोष्ठों का बना होता है, यानी डबल लेयर्ड हेक्सागोनल चेम्बर्स होते हैं। ऐसे कई सारे जो हैंगिंग शीट्स हैं इनका वह निर्माण करते हैं। यह प्रकोष्ठ वैक्स या मोम से बनी होती हैं और इनकी भित्तियाँ यानी वॉल्स एकदम पतली व भंगुर, बहुत ही थिन और फ्रेजाइल यानी भारी हाथ पड़ने पर टूट सकने वाली होती हैं। तो बहुत ही थिन और फ्रेजाइल होती हैं। छत्ते में कई सारे कक्ष यानी चेम्बर्स बने होते हैं। ये एक और चित्र है जहाँ पर पेड़ों से वर्टिकली हैंगिंग हाइव्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं और इनमें हेक्सागोनल चेम्बर्स पाए जाते हैं। इन चेम्बर्स में मधुमक्खी के लार्वे, अंडे, प्यूपा, ड्रोन्स और रानी रहती हैं। ये एक और चित्र है छत्ते का जो कि एक पतली सी डाली पर बना हुआ है। As I have already told you that honeybee, they are very gentle creatures unless they are harmed or threatened. Some of these species like Apis dorsata is very aggressive. So when these bees are threatened or when they feel that someone is going to harm their hive and their fellow members, their fellow honeybees, then they sting those attackers. When they sting the attackers, they inject poison. This poison can cause anaphylactic reaction in some people, which may lead to death if not treated in time. Along with secreting the poison from the poison gland, they also secrete pheromones, which are the alarm signal to the conspecifics, which tells them to attack the attacker. The honey bee lives on vertically hanging hives. These hives may be found uh, hanging on the trees or over the roof of tall buildings, over the balconies, on the rocks, several places where the inhabitation or the to and fro movement of humans are less found. They make horizontally double walled hexagonal chambered hives. These hives have hexagonal chambers, the wall of which are thin and very fragile. There are specific regions in the hive. These regions are called first the storage cells or the storage region, where the hexagonal cells are filled with the honey and pollen, and this cells occupy the side of the hive as well as the upper part of the hive. These cells or chambers are filled with honey, and then the mouth of the chambers are closed by the wax. The second type of cells are called the brood cells. In Apis dorsata, the chambers or the cells are of all same size, but in other species the cell size vary according to the inhabitant as well as the function for what purpose they are used. So brood cells can be categorized into three types.
where first type is called the worker cells. The chamber of the worker cells are small, and in these chambers the worker honeybees are reared. The second type is called the drone cells, where the chamber size is bigger than the worker's brood size, but it is smaller than the size of the queen cell. In these brood cells, the drone honeybees are reared. The third type of chamber is called the queen cells. These chambers are bigger in size, they are of irregular shape. Most of the time, they appear like the flower vase or cylindrical chambers. In these chambers, the queen bee are reared, and the queen bee live in the queen cell. मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उनमें षटकोणीय प्रकोष्ठ होते हैं। यह प्रकोष्ठ दो प्रकार के होते हैं। पहला संग्रह कक्ष, जहाँ पर शहद का संग्रह किया जाता है। यह छत्ते के किनारों और ऊपरी भाग पर स्थित होते हैं। दूसरे प्रकार के प्रकोष्ठ अंड कक्ष कहलाते हैं। यह एपिस डोर्सेटा में सभी कक्ष जो है वो समान आकार के होते हैं, परंतु दूसरी जातियों में यह कक्ष अलग अलग साइज़ के यानी आकार के हो सकते हैं। ब्रूड सेल्स की स्थिति मुख्यतः निचले भाग और मध्य भाग में होती है। द ब्रूड सेल्स आर प्रेजेंट generally in the lower part of the hive as well as the middle part of the hive. वर्कर सेल्स या श्रमिक कक्ष के अंदर श्रमिक मक्षिकाएं पाली जाती हैं और यह कक्ष छोटे आकार के होते हैं। नर कक्ष में नर मक्षिकाएं पाली जाती हैं। इन कक्षों का आकार श्रमिक कक्षों से बड़ा होता है। रानी कक्ष सबसे बड़े आकार के कक्ष होते हैं। इन कक्षों का आकार अनियमित होता है। बेलन आकार या फूलदान आकार का कक्ष होता है और यह छत्ते की सबसे निचली सतह पर पाया जाता है। द क्वीन सेल चेम्बर इज फाउंड इन द लोअर मोस्ट रीजन ऑफ द hive. Now here in this picture one can see queen laying the egg. This is a larva of 6 days. This is a larva of 10 days, and the worker is feeding the larva and seal the cell once the larva reaches the full growth. This is the pupa of 15 days, pupa of 18 days, and after 21 days the adult worker bee emerges out. Now we all know that honeybee is a social insect and in them polymorphism is found. हनी बी एक सामाजिक कीट होता है और इनमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं या विभिन्न प्रकार के जाति पाई जाती है। डिफरेंट कास्ट्स आर फाउंड। 3 prominent castes are found. In them we observe the division of labor. 3 प्रकार की जाति इनमें पाई जाती है और इनमें हमें कार्य का विभाजन देखने को मिलता है। ये जाति निम्न प्रकार से हैं। पहली क्वीन, दूसरा ड्रोन और तीसरा वर्कर। The 3 caste in the honeybee society are first the queen, second the drone, and third the workers. The sole purpose of queen is to lay the eggs. Her main function is egg laying. She does not perform any other function in the
हाइव। रानी मक्खी का कार्य केवल अंडे प्रोड्यूस करना होता है, बाकी किसी भी कार्य के अंदर रानी मक्खी कोई भी सहयोग नहीं देती है। रानी मक्खी अपने चेम्बर में से 16 दिन बाद बाहर निकल आती है। ड्रोन्स का काम केवल रानी मक्खी को रिप्रोड्यूस करने में सहायता देना होता है। यह रानी को स्पर्म प्रोवाइड करता है। ड्रोन्स अपने चेम्बर में से 24 दिन के बाद बाहर निकलता है। वर्कर तीसरी जाति होती है और छत्ते के सभी कार्यों को वर्कर बी द्वारा करा जाता है। वर्कर अपने सेल में से 21 दिन बाद बाहर निकल आते हैं। छत्ते के सभी कार्य जैसे छत्ते की सफाई, लार्वे को भोजन देना, फीड कराना, रानी को भोजन देना, फीड कराना, अपने छत्ते का टेम्परेचर को बरकरार रखना, गर्मियों में उसे ठंडा रखना, सर्दियों में उसे गर्म रखना, अपने छत्तों को दुश्मनों से बचाना और खाद्य सामग्री को एकत्रित करने का काम वर्कर्स द्वारा किया जाता है। और ये सभी काम विभिन्न एज की मधुमक्खियाँ करती हैं। जैसे अंडे से निकलने अपने प्यूपा अवस्था से बाहर आने के पहले दिन यानी एडल्ट जीवन के पहले दिन उसका काम छत्ते की साफ़ सफाई होता है। दूसरे तीसरे दिन और चौथे दिन ये मक्खियाँ अपने लार्वे को भोजन कराती हैं और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है इनका काम जो है वो परिवर्तित होता चले जाता है। लगभग 40 दिन की मक्खियाँ छत्ते को छोड़कर भोजन को एकत्रित करने के लिए अपने छत्ते से दूर फूड सोर्स यानी फ्लावर्स की तरफ जाते हैं और फूलों का रस और पोलन को इकट्ठा करके लाती हैं। 40 दिन के बाद मधुमक्खियाँ ना तो अपने यंग लार्वे को भोजन कराने में सक्षम होती हैं, ना वो शहद का निर्माण कर पाती हैं और ना ही वह छत्ते का निर्माण कर पाती हैं, क्योंकि उनमें व्याप्त हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स और वैक्स बनाने वाली जो ग्रंथि है वैक्स ग्लैंड, उनके कार्य में क्षीणता आ जाती है। तो बड़ी उम्र की मक्खियाँ का मुख्य काम केवल फूड सोर्सेस को ढूंढना और मकरंद और पराग को छत्ते में रहने वाली जो नर्स भी है उन तक पहुंचाना। यह अपने द्वारा लाए गए नेक्टर को अपने सलाइवा आदि से मिक्स करके छत्ते में रहने वाली जो नर्स बीज हैं उनके मुख में दे देती हैं, रीगर्गिटेट कर देती हैं और फिर जो नर्स बी है वह अपने क्रॉप के अंदर इस मकरंद को रखकर इनमें और एंजाइम्स आदि मिक्स करके इन्हें फिर शहद में परिवर्तित करती है। तो ये डिफरेंट काम किया जाता है और वर्कर्स के अंदर भी कार्य के विभाजन जो हम देखते हैं उसे कालिक श्रम विभाजन यानी टेम्पोरल डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। ये पिक्चर है एपिस डॉर्सेटा का, जिसको कि जायंट भी कहते हैं या रॉक भी कहते हैं। ये मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं या 500 मीटर की ऊंचाई तक यह पाए जाते हैं। This is a picture of Apis dorsata. They are generally found in the plain, but they are also found in high region up to 500 meters. ये बड़ी आक्रामक होती हैं और इनके द्वारा 5 से 10 किलोग्राम हनी का उत्पादन किया जाता है एक सीज़न में। अधिकतम 50 किलोग्राम तक शहद यह एक सीज़न में एक कॉलोनी से हम प्राप्त कर सकते हैं। एपीकल्चर के लिए अनुपयुक्त होती हैं। ये कंपैरेटिव साइज़
दिखाया गया है। एपिस डोर्सिटा सबसे बड़े आकार की होती है। एपिस मेलिफेरा मध्यम आकार की होती है। एपिस केराना इंडिका छोटे आकार की होती है। और इससे भी छोटे आकार की मधुमक्खी है एपिस फ्लोरिया, जिसको कि लिटिल रेड बी या लिटिल बी के नाम से या ड्वार्फ बी के नाम से जाना जाता है। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। ये जो पिक्चर है इसमें हमें टेम्पोरल डिवीजन ऑफ लेबर यानी कालिक कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है कि 1 से 2 दिन की जो एडल्ट मक्खी है उसका काम होता है टू क्लीन द सेल एंड दे स्टार्ट द cleaning the day they are born. They also keep the brood warm. 3 to 5 days old, their job is to feed the older larvae. 6 to 11 days old, they have the responsibility to feed the younger larvae. 12 to 17 days, they produces wax, they carry food, they build the comb, and they look after the queen. 18 to 21 days, they protect the hive entrance and they have the guard duty. And 22 days to 45 days, they fly from hive and collect pollen, nectar, water, propolis, etc. तो ये एक चार्ट है जिसके द्वारा हम विभिन्न एज की मक्खियों द्वारा जो कार्य किए जाता है उसको हम देख रहे हैं। 12 से 17 दिन की ओल्ड जो मक्खी है वह वैक्स और छत्ते का निर्माण करते हैं। वह फूड या जो नेक्टर है उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह मिलाकर वह हनी का निर्माण करते हैं, रानी की देखभाल करते हैं। इसके बाद की उम्र की मक्खियों के अंदर ये सारे काम क्षीण हो जाते हैं क्योंकि हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स और वैक्स ग्लैंड की कार्यक्षमता कम होती चली जाती है।